has done, what he is doing in us, through us in Pakistan. Amen. So, جی اور میرا تعلق جو ہے بیس ہماری ایف جی یہ ہے. میرے دادا جی انہوں نے 25 سال خدمت کی. میرے والد صاحب پچھلے 45 سال سے خدمت میں ہیں. اور میں 2006 سے 20 اگست میرا پہلا دن تھا ایز اے پاسٹر. اس سے پہلے جب میں 9 سال کا تھا اس وقت سے اپنے دادا جی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ خدمت میں تھا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان سارے سالوں کے لیے خدا نے حفاظت کی, مدد کی. 97 چرچز ہیں جو خدا نے میرے وسیلہ سے شروع کیے پاکستان کے اندر. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنی فیملی کے لیے. میری وائف, میرے بچے, ٹیم میرے ساتھ خدمت میں ہے. اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے یو کے اندر. ایسے کافی ممالک میں میں نے خدا کا کلام سنایا ہے, کلام کی منادی کی ہے, لیکن یہاں پہ یو کے اندر یہ پہلا موقع ہے. میں شاہد بھائی کا جو ہماری ٹیم کے بڑے ایکٹیو رکن ہیں اور ان کے ساتھ اسٹیفن بھائی کا, پادری صاحب کا, ساری پاسٹر ٹیم کا, آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکوں. آمین. So, yes please. Lord Jesus, we praise. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے, آپ اپنے گھروں میں واچ کر رہے ہیں, تو پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط, اس کا 10واں باب پہلی سے 12ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. اور اس میں سے آج اپنی نصیحت, تربیت, تسلی اور برکت کے لیے باتیں سیکھیں گے.
اور میں چاہوں گا کہ عمر بھائی، عثمان بھائی، قمر بھائی پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے. پلیز آپ if you don't mind please come forward. سامنے آئیں گے اور خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے ہم سب کے لیے. خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 12 آیت تک. اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہشیں نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے. ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. یہ باتیں ان سے عبرت کے لیے واقع ہوں، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوں، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. بعد میں پڑھیے گا پلیز. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. ہمیں خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ پالوس رسول کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ باتیں نہ صرف اس وقت کرنتھس کی کلیسیا کے لیے تھی، یہ باتیں آج ہمارے لیے بھی ہیں. اور جب کلیسیا کو نصیحت کر رہے ہیں تو جو کچھ پہلے ہوا بیابانی کلیسیا کی ایگزامپل دی، کیونکہ ہماری سٹوری اور بیابانی کلیسیا کی سٹوری سملر ملتی ہے. اصل میں وہ ایک تصویر تھی اور یہاں پہ حقیقت ہے. اور پالوس رسول کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ ایسی قوم، ایسے لوگ، بیابانی کلیسیا، جب خدا نے ان کو غلامی سے نکالا اور ان کو ایک نشان دیا، ایک جگہ دی، ایک منزل دی، ان کے سامنے ایک منزل تھی. مصر سے کنعان تک ان کو جانا تھا، منہ کے کنعان. اور ہوا کیا؟ سیم ہمارے پاس جب ہم گناہ سے نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک منزل ہے. ایک کو تھوڑی سی کم کر دیجیے گا پلیز. اور وہ کیا ہے؟ آسمان، نیا یروشلم. گناہ سے نکل کے، تاریکی سے نکل کے، پرانی زندگی سے نکل کے، گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کے جو مصر کو ظاہر کرتی ہے، ہمیں آسمان پہ نئے یروشلم میں جانا ہے. اور جب ان کی ہسٹری کو بیان کرتا ہے تو ساتھ چرچ کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک مثال ہے. جو کچھ ان پر واقع ہوا، جو کچھ اس وقت ہوا، یہ ایک سبق ہے آخری دور کی کلیسیا کا. یہ سبق میرے لیے، آپ کے لیے. اور کلیسیا سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو. دوسری آیت میں
लिखा है, बाप दादा का जिक्र करता है, पहली आयत से शुरू करता है कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया। They were baptized, मूसा का बपतिस्मा लिया। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद खुदा ने उनको निकाला, बपतिस्मा उन्होंने लिया, एक लीडर दिया। He was great leader. मोसेस मूसा जैसा लीडर उनको दिया कि अब यहां से निकाल कर तूने इनको कहां पे लेके जाना है? कनान के अंदर। इन सारी बातों के बावजूद फिर आगे बयान करता है कि वो बियाबान में ढेर हो गए। खुदा का ये प्लान नहीं था कि वो बियाबान में ढेर होते। अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखें कि ये लोग कौन थे, कहां से कैसे खुदा के प्लान का हिस्सा बना, शायद आप में से बहुत सारे इस हिस्ट्री से वाकिफ होंगे, लेकिन न्यू जनरेशन जो है, मैं थोड़ा सा उनके लिए बयान करना चाहूंगा कि ये बाप दादा कौन थे जिनका पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है कि हमारे सब बाप दादा सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और एक ही चट्टान से पानी पिया और सब ने समंदर में बपतिस्मा लिया और सब मूसा की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इन सारी चीजों के बावजूद वो बियाबान में ढेर हो गए। ये जो बाप दादा है, हमें भी जरूरत है, लेकिन अगर हम मसीह के हैं तो अब्राहम की नस्ल है, हमारे भी वो बाप दादा थे। अब ये बाप दादा कौन है? आपको पता, जब गुनाह बदी बहुत अरूज पर थी तो खुदा ने इस जहान की अदालत की, एक सजा भेजा और उसके बायस सारी दुनिया, हर एक चीज, सब कुछ खत्म हो गया, हलाक हो गया। और 8 जाने बचे। कितनी जाने? 8 जाने। नूह की वाइफ और 3 बेटे और उनकी बीवी। और इन 3 बेटों के नाम क्या थे? सिम, हाम और याफेत। अब सिम की नस्ल से नाहूर, नाहूर से तारा और तारा से अब्राहम, और अब्राहम जो था ये बेऔलाद था और खुदा से कहता है, खुदावंद मैं ऐसे ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये उसका एक मंसूबा या उसका प्लान या उसकी सोच थी कि मेरे बाद मेरा जो नौकर है वो जो कुछ तूने मुझे दिया है इस सारे कुछ का वारिस हो। बट खुदा का ये प्लान नहीं था। दिस इज जस्ट हिज थॉट, ये उसका ख्याल या उसका ज़हन था और सारी का एक अपना ज़हन था। हो सकता है ये कानूनी बात है, कानूनी तौर पर अगर मैं हाजरा से दे देती हूं तो हाजरा से आगे बच्चे पैदा हो जाए। ये सारी की सारा की सोच, अब्राहम की सोच क्या थी? अब्राहम की सोच कि मेरा नौकर सारे कुछ का मालिक होगा। बाज़ औक़ात हम ईमानदार होते हुए हमारी अपनी अपनी सोच, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना चाहिए। बट खुदा का एक अपना प्लान था। लाजिम है ईमानदार होते हुए हम खुदा की मर्जी को जाने। कोई भी फैसला करने से पहले हमें चाहिए कि हम खुदा की मर्जी को जाने और अपने ख्याल पेश कर रहा है। खुदा से कह रहा है, खुदा मेरे बाद मेरा जो नौकर है
ये सारे कुछ का मालिक होगा। But God said no, तेरे सुलभ से पैदा होगा और वो इन सारी चीजों का मालिक होगा। ये तेरी सोच है, लेकिन जो कुछ सारी कहती है वो उसकी सोच है, लेकिन मेरा प्लान, my plan is greater than yours। मेरा मंसूबा, मेरी सोच, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल जो है ये डिफरेंट है। खुदा ने बताया what's my plan and what will happen। मेरे प्लान्स क्या है, मेरा मंसूबा क्या है और क्या होगा। खुदा ने कहा तेरे सुलभ से पैदा होगा और फिर मैं उसे बरकत दूंगा, मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो खुदा ने बताना शुरू कर दिया क्या होगा। मैं उन लोगों को बरकत दूंगा, उससे पहले वो 400 साल 400 years, कितने साल? 400 साल ऐसे लोगों की गुलामी करेंगे जो उनको दुख देंगे, उन पर जुल्म करेंगे। और चौथी पुश्त में, कितनी पुश्त में? चौथी पुश्त में मैं उनको वहां से बड़ी कौम बना के, बड़ी दौलत के साथ वहां से वापस ले आऊंगा। और जिन लोगों की वो गुलामी करेंगे, जो लोग उन पर तशद्दुद करेंगे, जो लोग उन पर जुल्म करेंगे, मैं उनको सजा भी दूंगा। और ये कब, कैसे? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। खुदा ने सारा अपना प्लान अब्राहम को बताया और ऐसा ही खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया इसहाक, और फिर उससे याकूब, और याकूब से कितने बेटे? 12 बेटे। और यही बनी, ये हिस्ट्री है इस्राएल की। और हुआ क्या, इनमें से था यूसुफ, जो आप देखते हैं किस तरह सारे बाइबल से वाकिफ है, किस तरह से ये बेचा गया, मिस्र में चला गया, शादी हुई और इसके 2 बेटे हुए। और उसके बाद बाकी जो याकूब से पैदा हुए ऑल टुगेदर, बाकी जितने थे वो 66 थे, 66। और 3 ये इसमें ऐड करें, 66 प्लस 3 कितने हुए? 69 प्लस जेकब कितने हो गए? 7। और ये 70 लोग, अब खुदा का वो कलाम पूरा हो रहा है जो खुदा ने उस वक्त कहा था जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था। बाइबल में लिखा है घास जो है मुरझा जाती है, फूल कुमला जाता है, हमारे खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। आमीन। जोरदार ताली उसके कलाम के लिए जो ना तब्दील है, जो नहीं बदलता, जो पूरा होता है। ऐसा ही हुआ। अब ये 70 लोग मिस्र में जाते हैं और टोटल जो साल ये वहां पे गुजारते हैं 430 साल। कितने साल? लेकिन खुदा ने कहा था कि 400 साल क्या करेंगे? गुलामी करेंगे। पहले जो 30 साल थे इनकी आजादी के, खुशी के, जश्न के साल थे, जब यूसुफ इनको अपने सारे खानदान को वहां पे लेके गया, जश्न का इलाका इनको मिला और खुदा का हाथ इन पर बढ़ा। और लिखा है ये इस कदर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, सारा मुल्क इनसे भर गया। और खुदा का वो कलाम जो खुदा ने कहा था कि मैं बड़ी कौम बनाऊं। और उस वक्त वो पहला बादशाह मर गया और हुआ क्या, जो दूसरा बादशाह था वो खौफजदा हो गया। उसने कहा ये इतनी बड़ी कौम, ये तो हमसे भी ज्यादा होते जा रहे हैं इस मुल्क में, कहीं ऐसा ना हो जंग छिड़ जाए
और ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा। वाली बात प्लान किया। अब वो कलाम पूरा हो रहा है जो खुदा ने कहा था कि वो लोग इनको दुख देंगे। उन्होंने प्लान किया कि हम इन लोगों को, इन पर तशद्दुद करते हैं, इनसे इंटें बनवाते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन खुदा ने इसके साथ साथ ये रोते थे, चलाते थे, खुदा ने एक सेवियर, एक निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला उसको इस दुनिया में भेजा, जिसका नाम मूसा। और मूसा इन लोगों को लेकर वहां से निकला। ये जो 70 लोग, ये 70 लोग जब मैं कह रहा हूं, ये मर्दों का जिक्र है, उनकी बीवियां भी थी और बच्चे। 70 जो मर्द थे उनका शुमार है। 70 मर्द वहां पे मिस्र में गए थे। लेकिन जब खुदा ने इनको बढ़ाया, ये सारे मुल्क में फैल गए। जब इन पर तशद्दुद होता था, जुल्म किया जाता था, और बगैर कुछ दिए इनसे ईंटें बनवाई जाती। खुदा ने इनका चलाना सुना। खुदा ने मूसा को भेजा कि तू मेरे लोगों को इस गुलामी से निकाल, और मैं इनको यहां से निकाल कर कहां पे लेके जाऊंगा? कनान में, जहां पे ये आजाद होंगे, आराम की जगह, इंजॉय करेंगे मेरी बरकतों को। और ऐसा ही हुआ। जब मूसा ने उनको निकाला, बड़ी रुकावटें आई। खुदा का वो कलाम भी पूरा हुआ। 10 आफतें खुदा ने फराउन पर और मिस्रियों पर नाज़िल की। क्यों? एक ही बार खुदा निकाल सकता था, एक ही बार बगैर आफतें नाज़िल किए भी वहां से निकाल सकता था। लेकिन खुदा के कैलेंडर में, उसके टाइम में सारी चीजें ऑलरेडी खुदा ने ठहराई थी। किस वक्त कितने साल गुलामी करेंगे, जिनकी गुलामी करेंगे उनको सजा देनी है, और फिर इनको बड़ी दौलत के साथ वहां से। ये खुदा का एक अपना टाइम और उसका कैलेंडर। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पाना। बाज का हम वक्त से पहले सरबुलंदी चाहते हैं, बाज का हम वक्त से पहले सरफराजी चाहते हैं, लेकिन मिलती नहीं है। बाज का हम अपनी कोशिश से हो भी जाती है, अब्राहम की तरह बच्चा मिल भी जाता है वक्त से पहले, जो वादे का फरजांद नहीं है, हाजरा से, लेकिन वो बाद में कांटा ही बना रहता है। चुभता ही नहीं सारी जिंदगी। हमें अपनी बरकत के वक्त का इंतजार करें। जब वक्त आया, 400 साल उन्होंने गुलामी की, फिर खुदा ने 10 आफतें पर नाज़िल की, उनको सजा दी, और खुदा अपने लोगों को वहां से निकाल के लाया। और पौलुस रसूल कहता है कि ये बात बताता है, कहता है कि इन सब ने समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। बपतिस्माई आफ्ता, एक अच्छा अजीम लीडर खुदा ने इनको दिया। मौजज़ात इनकी जिंदगी में किए, वादे इनके साथ किए, और ऐसा खुदा जो वफादार, रात को भी दिन को भी इनके साथ, ना इनको धूप लगती, ना इनको जब प्यास लगती तो मसीह आप इनके लिए चट्टान बन जाता। खुदा इनके लिए बाज का चकमक की चट्टान से, चकमक का मतलब है आग की चट्टान, आग में से खुदा पानी इनके लिए निकालता। बाज का मसीह खुद इनके लिए चट्टान बन जाता। खुदा इनके साथ दिन को भी रात को भी, वादे उसके इनके साथ, खुदा के मंसूबे इनके साथ, खुदा का कलाम इनके साथ, उसकी हजूरी, उसकी कुदरत, उसका मसा, उसके खादम मंसूब इनके साथ। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद ये बियाबान में ढेर हो गए। और जब निकले लोग कितने थे? 70 गए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है औरतों और मर्दों, औरतों और बच्चों के सिवा, औरतें और बच्चे इसमें काउंट नहीं किए गए।
लिखा है तकरीबन कोई 6 लाख मर्द थे। हालेलुया। गए कितने? 70। तो आए कितने? 430 सालों के बाद 6 लाख सिर्फ मर्द थे। तो 12 बच्चे भी है ना। ये घूमते कितने से अगर साल ला लो बच्चे कितने होंगे उस वक्त। खैर मैं ये अलग बहस छिड़ जाती है। उस वक्त बीवियां का भी हिसाब किताब थोड़ा ज्यादा होता सी। और अभी टाइम नहीं कि हम इन चीजों को देखें कि क्यों, कब और कब खुदा ने एक बीवी का लॉ जो था, कानून जो वो शुरू हुआ, और उससे पहले क्या कानून था। बादशाह भी, आप नबियों को भी देखेंगे 2-2, 4-4 भी रखते थे। लेकिन कब खुदा ने एक का कानून ये आया। खैर ये चीजें पादरी साहब आपको आगे सिखाएंगे, हम इसकी बहस में नहीं जाएंगे। बताना मैं ये चाहता हूं 6 लाख सिर्फ कितने थे? मर्द। कौन थे? मर्द। सिर्फ 6 लाख। औरतें और बच्चे। मेरा एक नजरिया है, हो सकता है कि वो 50 लाख के करीब। अगर 6 लाख मर्द थे तो कोई 3-3, 4-4 बच्चे लगा लो। वेस्टर्न तरीका ही दोनों दिला दो, 1-1, 2-2, 3-3 तक, 4-5 तक हम दे लेकिन अगर असं थोड़ा एशियन पाकिस्तानी तो इंडिया उसे 8-8, 10-10, 12-12 है ना ऐसे। तो उस वक्त ऐसे था 40-50 लाख के करीब भी हम कह। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिगर बाइबल में लिखी, अंदाजा है। अगर 6 लाख मर्द थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बड़ी तादाद थी। इतनी बड़ी कौम को खुदा इनके साथ रहता रात के वक्त। अगर आप कोई हम क्रूसेड करते हैं ना 20,000 प्लस 30,000 लोगों का, तो बड़ा वक्त पै जाता है। लाइटिंग का रात में लाइट, सिक्योरिटी, सारी चीजें। अरे देखें 40 लाख के करीब लोग हैं। कोई लाइट की फिक्र नहीं है, सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है। खुदा आप उनके लिए आपका स्तूप बन जाता है। हालेलुया। बियाबान में रोशनी करते, ना खान की फिक्र। आदमियों ने फरिश्तों की गजा खाई। खुदा मेहरबान प्रोवाइड करता रहा। लेकिन 40 वर्ष तक उनकी जूतियां ना टूटी, कपड़े ना फटे। जैसे जैसे उनके बच्चे ग्रो करते, उनके पांव बड़े होते, जूती किस तरह से बड़ी होती जाती। ना कपड़े खरीदने की फिक्र, ना जुतियां खरीदने की, ना रोटी कपड़ा मकान, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। सारी फिक्रें खुदा खुद करता था। और फिर जो कुछ मांगते, खुदा उनके मांगने के मुताबिक उनको मुहैया करता। गोश्त खुदा ने बोलता पड़ो खाओ, रज रज खाओ। हर चीज खुदा ने मुहैया की। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बियाबान में ढेर हो गए, मार गए। इन सारी चीजों के बावजूद वो वादा की सरजमीन में ना जा सके। वजह आज हम देखें और क्यों ऐसा हुआ। ये चीजें आज के चर्च के लिए, पौलुस के दौर में जो चर्च था उनके लिए एक एग्जाम्पल थी। पौलुस ने कहा ये बातें उन पर वाक़ई हुई और हम आखिर जमाना वालों की नसीहत के लिए लिखी गई, ताकि जनरेशन टू जनरेशन हम इनको रीड करें, पढ़ें, सुने, सीखें, इन पर गौर करें और इनसे सबक हासिल करें, ताकि जैसे उन्होंने किया हमारी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही। आपकी बैकग्राउंड जो भी हो, आप जहां से भी हैं, आपके मौजदार मुल्क, जगह, घर, नस्ल, रंग जो भी है, जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आपका सफर शुरू हो गया उसके साथ। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, जैसे वो बियाबान में सफर करते थे, इसी तरह से हमारा सफर है। और बाइबल में लिखा है, ऐ प्यारो, पतरस ने कहा, ऐ प्यारो, मैं
अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से क्या करो, परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। जानो कि अपने आप को परदेसी, और इसका क्या मतलब है, हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। ईमानदारों, चर्च, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप आसमानी लोग हैं, आप बुलाए हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। यू आर अ चूजन जनरेशन। आप ऐसी कौम है जिसको उसने चुना है, अलग किया है। जैसे खुदा ने नूह के खानदान में से, सम के नस्ल में से, नहूर को नहूर से, तारा के खानदान में से अब्राहम, फिर अब्राहम से यकूब, इसहाक, यकूब, 12 कबीले इसराइल सेम में खुदा ने हमें चुना है, बुलाया है, और हमारे सामने एक मंजिल है, और वो मंजिल क्या है, नया यरूशलेम। बेशक हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। उन लोगों को कहां पे जाना था, वादा की सरजमीन मुल्क केनान में। हमें कहां पे जाना है, नए यरूशलेम। खुदा उनके साथ था। खुदा ने आपको कहां से निकाला, आप जानते हैं, मैं जानता हूं मैं क्या था, आप क्या थे, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन खुदा ने आपको वहां से निकाला। आप मसीह में हैं, आप बुलाए गए हैं ताकि आप उसके साथ चले। और ये मुसाफरत का जो दौर है, ये जो जमाना है, हम अपने खौफ में गुजारें। हमें खुदा ने चुना है, बुलाया है। वो बपतिस्मा याफ्ता था। आप में से कितने ने बपतिस्मा लिया, नए सिरे से पैदा हुआ? अगर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो आप जरूर लेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है। अगर मजीद आप जानना चाहते हैं, पादरी साहब के साथ राब्ता कर सकते हैं, चर्च के साथ ही आपको बेहतर तौर पे गाइड करेंगे। और ये लोग बैप्टाइज थे। पौलुस बयान करता है, इन सब ने समंदर में क्या लिया था, बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मे के बाद एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो सफर इनका ठीक न रहा, जिसके बायस ये बियाबान में ढेर हो गए और इनकी नई नस्ल आगे कनान में गई। कौन सी बातें थी जिसके बायस या जिन चीजों के बायस ये मुल्क के कनान में दाखिल ना हुए? आज पौलुस ने कहा कि ये बातें उन पर वाक़ई हो और हम आखिर जमाना वालों की नसीहत के लिए लिखेगी। जानना चाहते हो कौन सी बात है? हम इसी को फिर से पढ़ेंगे 5वीं आयत से, बल्कि 4थी आयत से। जी भाई पढ़ने में फिर रहनुमाई करेंगे। जी सुनिएगा। और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था, मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे। बाज का हम समझते हैं वो भी बहुत फख्र था उनको, यार रात मीरा बिना दिन भी छां करता है, मन भी होंगे कोई, जुतियां भी वाटियां जान दिया, कपड़े सारा कुछ मिलन दिया। खुदा बड़ा मेहरबान, खुदा हमारे साथ। आज कौमें कहती हैं, लोग कहते हैं खुदा हमारे साथ है। यस वी एग्री। खुदा ने जिसको पैदा किया है, जो इस दुनिया में है, बाइबल में लिखा है, वो अपना सूरज नेको बदो दोनों पर चमकाता है, वो अपना मींह दोनों पर बरसाता है। खुदा अपनी मखलूकात के साथ है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सब खाकर शेर होते हैं। लेकिन तू अपना चेहरा छिपा लेते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, खुदा सबके साथ, हम एग्री करते हैं,
कौमों के साथ, कबीलों के साथ, उम्मतों के साथ खुदा है। लेकिन माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल ये है, कौमों से, उम्मतों से, कबीलों से, सुनने वालों से, और मैं इस साथ बताना भी चाहूंगा, बनी इस्राएल के साथ भी खुदा था, लेकिन खुदा उनसे राजी ना था। क्या खुदा आपसे राजी है? आपका ताल्लुक किसी कौम, किसी फिरके, किसी खानदान, किसी रंग, नस्ल, मुल्क से क्यों ना हो, बेशक खुदा आपके साथ है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है। क्या वो आपसे राजी भी है? किसी के साथ होना एक अलग चीज है, किसी से खुश होना, किसी से राजी होना, ये एक डिफरेंट चीज है। क्या आप एग्री करते हैं? खुदा इनके साथ था, दिन रात प्रोवाइड करता, सब कुछ देता। खुदा ने इनको निकाला, इनकी जरूरतों को पूरा किया। खुदा साथ था, मगर खुदा राजी ना था। आज इस बात पे फिक्र न करें, मुझे खुदा पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहां पे ले आया है। खुदा मेरे साथ है। भाई, ये खुदा की मेहरबानी है तुझ पर, ये खुदा का फजल तुझ पर हुआ, उसकी मेहरबानी तुझ पर हुई कि खुदा तेरे साथ है। क्वेश्चन ये है, अपने आप से जरा पूछ, क्या खुदा तुझसे राजी भी है? ये कौन? खुदा इनके साथ था, मगर इनसे राजी ना था। क्यों राजी ना कर सके खुदा को? 5 मेन चीजें इनके अंदर थी, जो आज चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, वो जो आसमान की तरफ, यरूशलेम की जानिब रवा दवा है, ये उनके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। ये 5 चीजें उनके अंदर थी, और पौलुस लिखता है कि जैसे उन्होंने किया तुम ना करो। उन्होंने क्या किया, आए हम देखें। आगे पढ़िएगा भाई, 5वीं आयत से। चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। नंबर 1, पहली चीज जो उन लोगों के अंदर थी जिनके साथ खुदा था, बुरी ख्वाहिश। उनकी ख्वाहिशात कैसी थी? बुरी, बुरी ख्वाहिशात। लिखा है, ये इसलिए बातें लिखी गई, वो देर हो गए। वजह क्या थी? कि उन्होंने बुरी चीजों की ख्वाहिश की। और आगे लिखा है, इसलिए लिखा गया कि हम ना करें। बाइबल में लिखा है, जब ख्वाहिश हामला होती है तो फिर वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। और उनकी ख्वाहिशात क्या थी? खुदा साथ था, खुदा की मेहरबानी उन पर थी, खुदा उनके लिए प्रोवाइड करता रहा, लेकिन उनकी ख्वाहिशात कैसी थी? बुरी, बुरी चीजों की ख्वाहिश करते थे। बाइबल मुकद्दस में बुरी ख्वाहिशों का जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में जिस्म की ख्वाहिशों का जिक्र है। लिखा है, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। क्यों? कि जिस्म जो है ये रूह के खिलाफ, और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है। इंसान के अंदर हमेशा एक जंग लगी रहती है, और इंसान का जो ज़हन है ये मैदानी जंग है। ये जंग यहां पे लड़ी जाती है। रूह और जिस्म की जंग यहां पे होती है। और जिस्म क्या चाहता है? लेकिन अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी,
नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचना। और आगे लिखा है पौलुस ने कहा और जो इनकी मानिद है, जैसे पहले जता चुका हूं, फिर कह देता हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये वो ख्वाहिशें थी जिस्म की, दुनिया की रंग रलियां, दुनिया की ख्वाहिशात उनके अंदर थी, उनके अंदर बुरी ख्वाहिशें थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई चीज जो बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक है, बल्कि यीशु ने कहा चीजें जो अंदर से निकलती हैं वो इंसान को नापाक ठहराती है। अंदर से क्या निकलता है? बुरी ख्वाहिशात, बुरी ख्वाहिशें, खून रेज़ियां, ज़िनाकारियां, हरामकारियां, ये सारी चीजें अंदर से निकलती हैं और इंसान को नापाक करती है। और ये वो बुरी ख्वाहिशें थी पहली बात जिनकी वजह से वो बियाबान में ढेर हो गए और वादा की सरजमीन में दाखिल ना हो सके। दूसरी चीज, पहली चीज क्या है? बुरी ख्वाहिश। दूसरी चीज क्या थी? आगे पढ़िएगा भाई। और तुम बुतप्रस्त ना बनो जिस तरह बास उनमें से बन गए थे। चनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाच कूद को उठे और हम हरामकारी। दूसरी चीज क्या है? बुतप्रस्ती। जो कुछ उन्होंने वहां पे किया, लिखा है तुम बुतप्रस्त ना बनो। वो जो दावा करते हैं खुदा हमारे साथ है, भगवान परमेश्वर व्हाटएवर, खुदा हमारे साथ है, खुदा फरमाता है बुतप्रस्ती ना करो, राजी कर लो उसको। साथ तो है, क्या राजी करने के लिए भी तैयार है? राजी कब होगा? जब बुतप्रस्ती करने वाला बुतप्रस्ती छोड़ देगा, जब बुरी ख्वाहिशों, दुनिया की रंग रलियों में जिंदगी गुजारने वाला अपनी ख्वाहिशों को रूह कुछ के ताबे कर देगा, तब वो राजी हो जाएगा। तो लिखा तुम बुतप्रस्त ना बनो जैसे उन्होंने बुतप्रस्ती की। और इस कदर उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश हारून पर की, उनका बना बुत, ले फड़ सोना भी फड़, जो चाहिए फड़, बुत बना, बछड़ा बना हमारा। मूसा पता नहीं कहां पे मर गया। बीइंग अ पास्टर मुझे इन चीजों का अंदाजा है कि जब हम कभी विजिट ना करें, लोगों से मिले ना, लोगों के जहन में बड़े ख्याल आते हैं, पता नहीं भाई साहब खिदमत छड़ गए या उन्होंने भेड़ा की फिक्र ही नहीं, तरह तरह की चीजें। कुछ लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, उनका भी फिक्र खुदाया कुछ वाह होगी, ये तो जब से हम इसके साथ है, कोई तरक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसी फिरन रहे हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते। और मूसा दुआ के लिए गया, पहाड़ पे इंतजार कर रहा है, खुदावंद मेरी रहनुमाई कर, इस कौम के लिए एहकाम दे, मैं तेरी गाइडेंस चाहता हूं, मेरी रहनुमाई कर। लाखों की तादाद में ये कौम है, कैसे इसको लेके आगे चलना है, क्योंकि इनकी ख्वाहिशात ठीक नहीं है, अभी तक इनके अंदर चेंज नहीं आया। बताओ मैं क्या करूं? लॉर्ड आई नीड योर हेल्प मी लॉर्ड। इस कौम के लिए ये एक बड़ा बोझ है, ये कौम जो तूने मुझे दी है, ये लोग जो तूने मुझे दिए हैं, मैं इनके लिए रोजा रखता हूं, मैं तुझसे रहनुमाई मांगता हूं। खुदावन तू मेरी रहनुमाई कर। मूसा दुआ कर रहा है, मूसा ने रोजा रखा हुआ है, उस कौम के लिए इल्तिजाएं कर रहे हैं, लेकिन वो कौम पता नहीं मूसा कितने मर गए। हारून नु फड़ने करा तू ही ओदा भरा, तू ही नाल कम बछड़ा बना। उन्हें क्या है ते गुनाह है? नहीं नहीं नहीं, तेनों असी मार छड़ने दे बछड़ा। मैं कह लिया वही, फिर मैं भी जान बचा लो। याद है ना आपको उसने क्या किया?
मूसा आया खुशी के साथ, वाह, खुदा ने मुझे रहमा वर्ड दिया जो लगास की सूरत में मेरे पास है, लिखा हुआ। ये तख्तियां खुदा ने दी इस कौम के लिए, बड़ी खुशी के साथ पहाड़ से उतर रहा है, लेके आ रहा है बड़ी खुशी के साथ। वाह, खुदा ने इस कौम की रहनुमाई के लिए मुझे काम दिए हैं, खुदा ने इस कौम की रहनुमाई के लिए हुक्म दे दिए हैं, मैं जाके बयान करूंगा, ये खुश होगी। आप उस कौम का हाल में ओह माय गॉड, गौर करना सर, बछड़ा बनाया उन्हें, नाचने बुतपरस्ती में पड़ गए, उन्हें भी ये आके ना ते चुपके मारा खुदा का भाई। इस कौम ने, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैंने कुर्बानियां दी, मैंने शाही महल को छोड़ दिया, रेगिस्तान में रहा, खतरे में रहा, बड़े बड़े खतरात मोल लिए, बड़े खतरे मैंने मोल लिए। इस कौम के लिए मैं भूख काट रहा हूं, फाके रोजे तेरे हजूर में आता हूं, लेकिन ये क्या दिल टूट गया मुझसे। उसने फिर वो तख्तियां ही तोड़ दिया। ओह माय गॉड, लेकिन लीडर था, बात से फिर आप पे मेहनत कर रहे थे, फिर जाना फिर ले आना। अच्छा, खुदा ने कहा ये लोग मेरे आराम में दाखिल हैं, उन्हें क्या करेगा, नहीं ना जाना, तो फिर मेरा भी ना कट जाए, मैं भी नहीं जाना। लीडर था, फिक्र थी, लेकिन वो कुछ और समझ रहे थे। लीडर का दिल उनके लिए किस कदर धड़कता है, रातों जाग रहा है, रोजे रख रहा है, लेकिन वो समझ रहे पता नहीं सानू छाती गया है, कितने चला गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, बचना बुतपरस्ती शुरू कर दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, तराशा हुआ या किसी और तरह से कोई बुत बनाया जाए, यही बुत नहीं है, बल्कि हर वो चीज, पैसा, जॉब, रिश्ते, व्हाटएवर, जो भी चीज जिसको भी आप खुदा से ज्यादा टाइम देते, खुदा से बढ़कर अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं, वो आपके लिए बुत है। मसीह की पहचान, उसकी शान, उसके मुकाम के खिलाफ अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज है तो आप समझ जाए वो बुत है, उसको खत्म करने की जरूरत है। वो बुत परस्ती में पड़ गए। पहली बात क्या थी, बुरी ख्वाहिश। दूसरी चीज जिसके बायस वो बियाबान में, हमने अपने आप को चेक करते जाना, ये उन पर हुआ सबक साढ़े लेंगे, देखना है कहां कहां पर रूह कुछ उंगली रख रहा है, पुत्र इतने तुम्हें बहुत परस्ती कर रहा है, देख तेरी ख्वाहिशें भी यहां पे है, ऐसे आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। रूह कुछ कह रहा है आपकी तरफ से नहीं, देख चेक कर, चेक योरसेल्फ, तेरी ख्वाहिशें कैसी है, तेरी जिंदगी में कौन कौन सा बुत है जो तुझे इस दुनिया में ढेर कर सकता है, वादा की सरजमीन या यरूशलेम में जाने से रोक सकता है। तीसरी चीज क्या थी, आगे पढ़िएगा भाई, खाने पीने जी। फिर नाचने कूदने को उठे और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की। तीसरी चीज क्या थी, लिखा है हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की। और एक ही दिन में 30,000 मारे गए। 23,000 एक ही दिन में कितने मारे गए जी? 23। ऐसे वजह नहीं। तीसरी चीज क्या थी, हरामकारी। हरामकार अपने भी जिस्म का गुनहगार होता है। हरामकारी है क्या? अपने जिस्म का नाजायज और गलत इस्तेमाल करना हरामकारी है। और उन्होंने क्या किया,
अपने जिस्मों का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया। लिखा है कि हम हरामकारी ना करें। एक जगह पे कलीसिया को कहता है ऐसी हरामकारी चर्च में की जाती है कि गैर कौमों भी नहीं होती, और कोई इस पर अफसोस नहीं करता। आज ये भी हरामकारी है, मर्द मर्दों से शादी, औरतें औरतों से शादियां और बहुत कुछ, ये सारी चीजें हरामकारी में आती है। और चर्चिस के अंदर निकाह किए जा रहे हैं, चर्चिस परमिशन दे रहे हैं, ये हरामकारी है। बाइबल मुकद्दस कहती है हम हरामकारी ना करें जिस तरह से उन्होंने की, और एक ही दिन में 23,000 बड़ी तादाद के 1000 बंदा ही हुए तो वक्त पै जाता है। 23,000 एक ही दिन में, एक वक्त एट द टाइम, एक ही वक्त में खुदा ने 23,000 को मार दिया। भूल जाओ वादे, भूल जाओ कहां से निकाल लाया, क्या वादे बाप अब्राहम के साथ किए, तुझे इस लायक ही नहीं। बाइबल वादों से भरी पड़ी है, वादे भी उनकी जिंदगी में पूरे। किसी ने कहा है, किसी स्कॉलर ने, कि खुदा हमें बरकत नहीं देता, खुदा हमेशा अपने कलाम को बरकत देता है जो हमारे अंदर होता है। जब कलाम हमारे अंदर नहीं है, कलाम के मुताबिक हमारा चाल चलन नहीं है, तो फिर भूल जाए वादे, क्या किए, कब किए, कितने वादे हैं, भूल जाए, नहीं पूरे हो। अब 23,000 को मार दिया। आगे चले, कितनी चीजें हो गई? 3। आगे, और हम खुदावंद की आजमाइश न करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। चौथी चीज क्या थी? खुदा को उन्होंने आजमाया। आपको पता ना, लिखा है, उन्होंने कहा आओ हम देखें कि खुदा हमारे साथ है कि नहीं। आओ जरा आजमाइए रब ना, लेकिन आप क्या समझते हैं कि खुदा उनके साथ था? जी था, था। इसीलिए तो वो निकल आए मिस्र से, इसीलिए बादल उनके साथ, इसीलिए तो वो पिलर ऑफ फायर, आग का जो सतून था, रात को उनके साथ बियाबान में रोशनी करने के लिए लाखों लोगों को रोशन करता था। दिन को धूप जब होती तो खुदा खुद ही बादल मान के उनके ऊपर ऐसे लाखों की तादाद में थे, खुदा खुद ही इतना बड़ा बादल बन जाता और जूतियां ना टूटने दे, फिर गोश्त मांगने में बटेरे ही बटेरे, आदमी फरिश्तों की खुराक खाते रहे। ये साइन है खुदा ने संभाला, खुदा दिन रात उनके साथ रहता, उनके साथ साथ चलता, साथ था लेकिन राजी नहीं था। उन्होंने कहा कि आओ हम देखें, आजमाएं, चेक करें कि खुदा हमारे साथ है कि पता नहीं। रब ने छड़ दिया, छोटियां छोटियां गल्लां दी रब ने ज़बान, जॉब चली जाए पता नहीं रब छड़ दिया सन, बैंक बैलेंस कम होगा, पता नहीं खुदा ना ले, लेकिन की बनेगा, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, सारा कुछ आसान हो जाएगा। खुदा हमेशा आपके साथ है। मैं तुमसे कभी दस्तबरदार जड़ा इथों तक लैके आया अकेली, क्योंकि वो साथ है, लेकिन उनकी निगाहें चीजों पर थी। मटीरियल को देखकर वो जज करते थे रब नाल हैगा कि पानी जरा लेट हो गया तो पता नहीं रब नाल। वो चीजों को देखकर, कभी भी चीजों को देखकर अंदाजा न लगाए कि खुदा मेरे साथ है कि नहीं। ही इज विथ यू। जब भी आप महसूस करें, गौर से ईमान से देखें,
آپ اس کو سب سے زیادہ اپنے قریب پائیں گے۔ آپ مشکل میں ہو، آپ آزمائش میں ہو، بعض کا ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی خدا کا شکر کرے، خداوند تو آج بھی میرے ساتھ ہے، تو اس وقت بھی میرے ساتھ تھا، میں بیمار ہوں تو اب بھی میرے ساتھ ہے۔ حبقوق کی طرح کہیں خداوند کچھ بھی نہ ہو، اگر جاب چلی گئی ہے، سب کچھ جاتا رہا ہے، میں تجھ سے خوش رہوں گا۔ ہاللیلویا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، تیرے وعدے، تیرا کلام میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں تیرے کلام کا ہی لحاظ رکھتا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے I'm satisfied، میں پورے طور پہ مطمئن کہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری راہوں پہ چل رہا ہوں۔ اگر کبھی کوئی بے وفا بھی ہو جائے تو خدا تو پھر بھی وفادار رہتا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، خدا کو بائبل بار بار یہ بات بتاتی ہے کہ خدا کی آزمائش ہم میں نہیں کرے۔ صرف ایک بات میں خدا کہتا ہے مجھے آزماؤ، وہ کون سی بات ہے؟ ٹائپ۔ خدا نے کہا کہ مجھے دے کر تو دیکھو، آزماؤ کہ میں آسمان کے دریچے کھولتا ہوں، جیڑی گل چ زمانہ ہے اس کو بھول گئے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ نہیں خدا بھی بات کر رہی، پادری صاحب بھی اچھی جاب کرتے ہیں، گرجا بھی سارے نو 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 یہ مشہور کر نو سر، جو خدا نے مقرر کیا ہے ہمیں وہ دینا ہے۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے، ہم خدا کو سکھاتے خدا تم کو ہے، تیرے کو تو سارا کچھ، تینوں کا بھی کمی ہے، سانو تے کمی ہے نا۔ خدا کہتا بیج بو تاکہ تمہاری کمیاں دور کرو۔ ہاللیلویا، آپ کی ٹائپ، آپ کی گیونگ آپ کا بیج ہے۔ خدا چاہتے ہی قانون ہے خدا کا، جب تک یہ زمین دنیا قائم ہے بونا اور فصل کاٹنا جاری رہے گا۔ اب خدا قانون کیسے تبدیل کرے؟ اس نے فرما دیا قانون آپ دیں گے تو آپ کو برکت ملے گی۔ ایلیا بیوہ کے پاس چلا، بعض کا حالات خراب ہو تو سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن چرچ میں جو ٹائپ ہے، گیونگ ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ بھائی صاحب کہنا کچھ لوگ یہ کہ آپ کی دائی کی حدیت، بھائی صاحب تو ہمیں پتہ حالات کے خراب ہو، کرونا چل رہے ہیں، ہو رہا ہے، بھائی کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ بھائی صاحب یہ نہیں کہہ رہے سارا کچھ کر کے کر لیا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے۔ اب ایلیا بیوہ کے گھر چلا گیا، بیوہ کہتی کہ میرے پاس کیا ہے، مٹھی بھر آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے، اور اپنی زندگی کے اینڈ پہ وہ بہت 100% شیور تھی کہ یہ کھاؤں گی میں اور میرا بیٹا، اس کے بعد مر جائے گا۔ پتہ نہیں کتنی ہی دیر سے دعا کرتی خداوند اے رہ گئے کتنا 4 دن کا، اے ایک دن کا رہ گیا، اے ایک ڈنگ کا رہ گیا، پھر اچھا ایک ڈنگ کا بنا کے تے بعد کھا کے تے مر جاؤں گے۔ اپنی زندگی کے اینڈ پہ خدا نے اس کی دعا کے جواب میں اس طرح سے تو نہیں کیا جیسے من آتا تھا، خدا نے اس کی دعا کے جواب میں ایلیا کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ بیج بوئے اور فصل کاٹے۔ ایلیا نے رات سے کہا مجھے پانی پلا، اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پانی پلانے تیار ہے، فیتفل ہے، میں خدا کا خادم ہوں، یہاں کی خدمت کرے، کھانا بھی کھلائے، سن روٹی بھی میرے لے آئی۔ انہوں نے کیا خدا دے بندے، خدا جانتا ہے میرے کو کچھ نہیں، صرف ایک مٹھی بھر آٹا ہے نا کو آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے میرے گھر کپی کے اندر، تاکہ میں وہ روٹی بناؤں۔ لکڑیاں میں جمع کر رہی ہوں، اکٹھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بناؤں، پلان بھی میرا یہ کھا کے بعد مار جانا تے چل جے تو کہنا ہے۔ اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا جا پہلے میرے لیے لے گیا، پھر تو اور تیرا بیٹا اس کے لیے بنانا، پھر تم کھا۔ اس نے یقین کر لیا گئے
اور ایلیا نے دعا کی، جتنے دن کال رہا، بڑے بڑے گھروں میں کال ہے، بادشاہوں کے گھروں میں کال ہے، بڑے بڑے نام ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں کال ہے، لیکن بیوہ کے گھر میں کثرت آ گئی۔ ہاللیلویا! جتنے دن کال رہا، بائبل میں لکھا ہے بیوہ بھی اور اس کا سارا کنبہ وہاں سے کھاتے رہے۔ ہاللیلویا! ایوری ڈے نیو میریکل، نیا معجزہ، نیا خدا کی قدرت کا کام۔ وہ آٹا نکالتی اتنا اور آ جاتا، ہر روز خدا معجزہ کرتا، کپڑی میں سے تیل نکالتی اور آ جاتا، ہر روز خدا معجزہ کرتا۔ اس سلسلے میں خدا کہتا ہے رات جیسے بھی ہو آپ ایماندار رہیں۔ کسی نے کہا اگر کوئی چرچ کا حصہ ہے، کسی اسکالر نے کہا اگر وہ ایمانداری سے، وفاداری سے جو خدا کا ہے خدا کو نہیں دیتا تو اس کی نجات پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ اگر جو خدا کا وہ نہیں دیتا، ہو سکتا ہے بہت ساری زندگی میں ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پہ خدا کو آنر، عزت، ورشپ، حمد و ستائش جو کچھ دینا ہو سکتا ہے کہ وہ ان ایریاز میں بھی خدا کو نہ دیتا، تو اس لیے اس کی نجات پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بائبل اور کہیں ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم خدا کو آزمائیں، صرف ایک ہی بات ہے، گیونگ۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں۔ جاب چلی جائے، گھر چلا جائے، ویزا نہ لگے، حالات برے آ جائیں، جو بھی ہو رہا ہے اپنے خدا سے خوش رہیں۔ ہم نے اس کی آزمائش سب کہیں گے نہیں، لکھا ہے تم خداوند کی آزمائش، لیکن انہوں نے کی کیا؟ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، دن کو بھی رات کو بھی کھانا بھی کھلا رہا، ساتھ ساتھ چل رہا۔ اس نے ان کی خاطر بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا اور کہا کہ ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ جو آگے بڑھا خدا نے ان کو ویسے ختم کر دیا، فرعون سمیت۔ اس کے بعد جتنی قومیں، جتنے بادشاہ، پھر لوگ ان کو رستہ دیتے تھے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے، منگل نہ ہوئے تھے، دیکھنا نہیں نا۔ ان کی خاطر بڑے بڑے بادشاہ کو مارا۔ This is sign، یہ نشان ہے کس بات کا؟ کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا ایمانداروں آپ کے ساتھ ہے۔ آپ مشکلات میں سے گزرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کو راضی کر رہے ہیں۔ خدا ساتھ تھا پر راضی نہیں تھا۔ آگے پانچویں اور آخری بات ہم دیکھیں گے جس کے باعث وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ جی بھائی۔ اور تم بڑبڑاؤ نہیں، جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئی۔ اینو ذرا ڈالا، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے ان پر عبرت کے، عبرت کیا ہے جی؟ ایگزامپل، مثال، سبق، ایک ایگزامپل جو کچھ ان پر ہوا، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ آگے بڑھیں۔ اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ ہوا ان کے ساتھ، نصیحت ہم نے حاصل کرنی۔ بی کیئرفل، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ ہماری نصیحت کے واسطے ہے۔ لکھا ہے کہ ان پر یہ 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ان پر ہوا اور نصیحت ہماری کے لیے لکھی ہوئی بات ہے۔ آج ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ یروشلم، نیا یروشلم ہماری منزل ہے، نیا یروشلم آسمان ہمارا گھر ہے۔ ہم سب پردیسی اور مسافر ہیں۔ اس سفر میں اپنے آپ کو چیک کریں۔ بائبل کہتی ہے اپنی مسافرت کا زمانہ خدا کے خوف میں بسر کریں۔ 5ویں چیز کیا تھی؟ وہ بڑبڑائے، بڑبڑاتے رہے۔ یہ ایک بڑا سنگین گناہ ہے۔ موسیٰ پر بڑبڑائے۔ موسیٰ جب پانی نہیں ملا، خدا ان کے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، پہلے موسیٰ نے کہا اعتراض ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا انہوں نے جھگڑا کیا۔
मूसा के साथ झगड़ा शुरू कर देते वड्डा पादरी बनया करे खुदा साथ लैके जाए मेरा नहीं मान के खुदा हमें कनान में लेके जाएगा। क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी? तू हमें बियाबान में मारने के लिए ले आया। ये ना तो खुदा का मंसूबा था और ना ही मूसा था, लेकिन ये उनकी सोच थी। बरबराते रहे हारून पर, मूसा पर, उस सेटअप पर, लीडरशिप पर, खुदा पर बरबराते रहे, बरबराते रहे। असी मिस्र में गोश्त की हांडियों के पास बैठकर जी भर के गोश्त खाते थे। तो गोश्त निकलता के इसी में भूल गए, तशद्दुद होता था उनको, है ना, मुकर्रर किए जुल्म करने वाले उनको। खुदा तो अजीम खुदा है, निकाल लाया, शुक्र करो रब दा। बड़बड़ा रहे हम तो हांडियां भरते। मैं अक्सर हमने एक कॉलोनी बनाई है पाकिस्तान में, शायद भाई जानते हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा है। भट्टों में हम लोगों के पैसे अदा करते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल, वहां से निकाल कर घर बना के उनको देते हैं, उस फैमिली को जिसके हम पैसे अदा करते हैं। उसके बाद उनको उस कॉलोनी में ले आते हैं, घर देते हैं, 1 महीने का राशन चीजें देते हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि आप जॉब तलाश करें, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, आगे चलाएं अपना घर। और एक दिन की बात है, मुझे याद आया कि एक फैमिली को हम लेके आए, कोई पाकिस्तानी, हमने उनका 3 लाख 20,000 या 30,000 था अदा किया क्रिसमस के दिनों में। तो हम बिजी थे, जो राशन रिटेन के मुताबिक उस फैमिली को 1 मंथ का देते हैं, जिसको हम आजाद करवाते हैं, उनको ना दिया। कोई 2 हफ्ते हो गए ना, वैसे उनको खाना मिल रहा था, चर्च से लोग जाते उनको खाना दे आते। तो भाई ने कहा यार जुमेरात में खर्चा मिल रहा है, इट्टा बनाई दी जुमेरात में गोश्त बनाने, जिदन दे है गोश्त नहीं मिला। मैं अगले दिन उन्होंने ऑफिस से बुला लिया, मैं क्या हो जी, मैं कहा तुसा तो गल वही की इसराइलियों वाली कि असी मिस्र से गोश्त दियां हांडियां को, भाई ने कहा जी मैं तो आप को नहीं ला के खाना हूं, तो मैं कहा फिर इत्थे की लैन आया। सानू मैं भी वक्त पाई रखा कि 6 महीने साढ़े भी पैसे अदा कर। बास बात हमारा रवैया भी वैसे होता है। हम मिस्र में गोश्त की हांडियों के पास बैठकर जी भर के गोश्त खाते। मेरे दिल से बड़ी सख्त गल मैं कहना नहीं चाहता, चलो कहते समझ गए होगे, हम सब पंजाबी है, पता सब जरा किसी खाते रहे, मार थोड़ी खाती जी। 430 साल जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, वो याद नहीं है। खुदा ने मेहरबानी की, निकाल लिया, तो खबर नहीं देता थे, इतने आके अपनी मर्जी में चल रहे। हो सकता बीवी कहे कि पाकिस्तान जो थे चंगे हमें ना होने थे कि ला नहीं। खुदा का शुक्र करे जैसे भी है, जहां पे भी, जब बीवी अपने शोहर पर बड़बड़ाती है खुदा नाखुश होता है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स पर बड़बड़ाते हैं खुदा नाराज हो जाता है। जब नौकर अपने मालिकों पर बड़बड़ाते हैं खुदा इसको पसंद नहीं करता। जब चर्च लीडरशिप पर, जब चर्च पासबान पर, उस लीडर पर जिसे खुदा ने मुकर्रर किया बड़बड़ाता है, लोग बरकत की जगह पे कर्ज लानत ले लेते हैं। खुदा खुश नहीं होता। 5वीं और आखिरी चीज उनके अंदर क्या थी? बड़बड़ाते रहते थे। बड़े मां पे भी बच्चे आते भी बड़बड़ाते रहते, माँ बाप के लिए भी है। मनफी ना बोले, मुस्बत बोले, खुदा से ठीक करे, एक दूसरे की मदद करे, हौसला अफजाई करे। दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, अगर इतने दुख ना होते तो नया यरूशलेम बनाने की खुदा की जरूरत। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान में जाकर तुम्हारे लिए जगह यसु की जगह तैयार करने की लोड़ से इतने सुख होगा। दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, आदमी जो औरत
लेकिन दुखों से इसकी जिंदगी भरी है। जब दुख मिले, लीडर्स पर इंसान न लगाए, बड़बड़ाए नहीं, बल्कि दुआ करें, आजिज हो जाए, अपने आप को, सारी चीजों को खुदा के हाथों में दें। अगर कोई बीवी यहां पे है जो अपने शोहर पर बड़बड़ाती है, तो मेरी बहन आज ये कलाम तेरे लिए है। अगर कोई शोहर अपनी बीवी पर बड़बड़ाता है, ये कलाम तेरे लिए है। अगर बच्चे अपने माँ बाप पर बड़बड़ाते हैं, तो ये कलाम आपके लिखे। लानत उस पर जो अपने बाप से कहे या अपनी मां से कहे तो किस चीज का बाप है, किस चीज की मां है। अगर कलीसिया, कांग्रेगेशन, चर्च लीडर पर बड़बड़ाता है, तो आप सेफ प्लेस पे नहीं है, आप खतरे की हालत में हैं। सो आज दिस इवनिंग मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ये वो 5 चीजें थी जिनके बायस वो बड़ी कौम, जिसे खुदा ने चुना, जिसको खुदा ने बुलाया, जिनको खुदा ने गुलामी से निकाला, जिनके साथ वादे किए, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, ये 5 बातें हैं जिनके बायस वो उस जगह या वादा की सरजमीन में दाखिल